Hello students of Standard 9. Once again, I'm in front of you with the portion of topic 1, the village of Palampur. Dear students, if we talk about the last video, then I just give you a scene of a hypothetical village of not only the Palampur, but like Palampur, whatever there are so many villages in India where almost the same facility and with same composition there is existence of thousands of villages, right? In last video at the end we are just telling that we will just study about the different activities for generation of income, different activities for production of goods and services, right? How just occurring in Palampur. In another line, try to understand what are the different activities or work just done by the different peoples for fulfilling their requirements, right? So whenever you will see in your village, then you will find that there are mainly two types of activities just performing in mainly villages, right? One of the work you can say the farming activities, and another work or another activity is non-farming activities. Since about to 70 to 80% peoples are just involved in agriculture and related activities in villages, or only 20% peoples are just involved in non-farming activities. Now it is possible in your mind there is a question just rising, what is farming activities and what is non-farming activities? So all those activity related to production of any grains, production of cereals, production of vegetables, production of flower, production of fruits, these are farming activities. Apart from this, few of the peoples just do the poultry farm, just do some goat poultry, having their domestic cow and buffaloes, right? And they are just producing milk. सो यू विल सी, मुख्य रूप से आप देखो तो खेती और पशुपालन ये मेन एक्टिविटीज हमारे विलेज में होता है. अपार्ट फ्रॉम दिस, few of the peoples are just engaged in small industries having their own business. कुछ लोगों का क्या होता है, बिजनेस होता है, कुछ अपनी फैक्ट्रियां होती है छोटी मोटी, कुछ लोग दुकान खोले हुए हैं, बिजनेस के कैटेगरी में आप रख सकते हो, ठीक है. तो ओवरऑल देखते हैं तो मैक्सिमम पीपल जो है वो तो या तो एग्रीकल्चर वर्क करते हैं, और एग्रीकल्चर वर्क के अलावा जो है कुछ लोग इंडस्ट्री बिजनेस आदि में भी इन्वॉल्व हैं, और कुछ पीपल्स जो देखा जाए तो आप देखोगे कि गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में, या वो गांव से छोड़ करके दूसरे जगह जा करके लेबर का या दूसरा वर्क करते हैं. मतलब डे बाय डे यू आर जस्ट सीइंग दैट द नंबर ऑफ द पीपल्स जस्ट इंक्रीजिंग and just increasing in other activities. It means that there is less pressure of the agriculture, just reducing. एग्रीकल्चर पर बोझ ज़्यादा है, इसलिए उस एग्रीकल्चर पर बोझ कम करने के लिए धीरे धीरे कम हो रहा है, और कुछ लोग इधर उधर दूसरे काम में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं. यू विल सी कुछ ऐसे पीपल्स हैं जो एग्रीकल्चर के टाइम में एग्रीकल्चर वर्क तो करते ही हैं, साथ साथ उसके साथ भी कुछ अदर वर्क से हुए जुड़े हुए हैं. तो सेम स्टोरी सेम सीन जो है वो पालमपुर का भी है. पालमपुर में भी कुछ इसी तरह से हो रहा है, राइट? जो कि जिस मतलब इंडिया की सभी विलेजेज में ऐसे हो रहा है, राइट? डियर स्टूडेंट्स,
हम लोग बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे, राइट। पूरे इकोनॉमिक्स में बहुत इंटरेस्टिंग कंपोनेंट है सोशल साइंस का, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से हमारे रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है, बहुत मजा आने वाला टॉपिक है ये। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं कि पालमपुर में कैसे प्रोडक्शन होता है, किसी चीज की उत्पादन कैसे होती है। कोई चीज का जब हम उत्पादन करते हैं, किसी गुड्स या सर्विस की हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, वेन एवर वी विल टॉक अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज, देन व्हाट आर फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर इट, व्हाट आर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर इट, एंड फॉर developing the agriculture what we have to do. Dear students, you will see about the factors of the production, then you will that there are 4 factors for production. किसी भी तरह का उत्पादन हो, चाहे वो एग्रीकल्चर वर्क हो, एक छोटा बिजनेस चलाओ या एक फैक्ट्री खोलो, कोई भी वर्क करते हैं हम तो उसमें 4 फैक्टर की जरूरत होती है। हम लोग काफी डिटेल्स में इसको स्टडी करेंगे। अभी हम लोग देखें, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हो जाए। सबसे पहले जो भी बिजनेस आपको करना है, जो भी काम करना है, तो उसके लिए आपको लैंड चाहिए। जैसे कि मान के चलिए यू हैव टू डू एग्रीकल्चर एक्टिविटी, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर वेयर देयर इज द फार्मिंग एक्टिविटी बी डन, देयर इज नीड ऑफ लैंड। जमीन होगा तभी तो उस पर हम फसल की उत्पादन करेंगे, हम कुछ बोएंगे। तो सबसे पहला फैक्टर है हमारा क्या, लैंड। अगर हमें बिजनेस स्टार्ट करना है तो जमीन चाहिए जहां पर कि हम यूनिट बना सके, हम बिल्डिंग बना करके या घर बना करके वहां पर प्रोडक्शन का वर्क शुरू करें। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो प्रोडक्शन का, वो क्या है, लैंड। लैंड इज मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्शन। सेकेंड वन इज लेबर। अब जमीन तो है लेकिन उस पर वर्क कौन करेगा। वर्क करने के लिए क्या चाहिए, वर्क करने के लिए वर्कर चाहिए जिसके द्वारा एग्रीकल्चर एक्टिविटी किया जाएगा। तो सेकंड फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो लेबर का है, राइट। लेबर जो है, लेबर सबसे इंपॉर्टेंट है, हु विल परफॉर्म द एक्टिविटी। चाहे एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो, इंडस्ट्री भी खोल ले, हमने मशीन लगा लिया, हमने बड़ा बिल्डिंग बना लिया, ठीक है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन क्या है, उसको उस टेक्नोलॉजी, वो वर्कर नहीं है जो उस वर्क को प्रोडक्शन की एक्टिविटी करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन वहां पे नहीं होगा। तो प्रोडक्शन के लिए जो सेकेंड मोस्ट एसेंशियल फैक्टर है वो क्या है, लेबर है, ह्यूमन, राइट। ह्यूमन है, लैंड, सेकेंड वाइज लेबर, और थर्ड क्या है, कैपिटल। कैपिटल, अब आपके पास लैंड है, ठीक है, लेकिन आप अगर खेती करना चाहते हो तो खाद, बीज, आपको जुताई, उसके बाद सिंचाई, इरिगेशन के लिए, प्लोइंग के लिए, सीड्स के लिए, इंसेक्टिसाइड्स के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास कैपिटल होना चाहिए। आप देखोगे आगे हम पढ़ाएंगे कि कैपिटल ये 2 तरह के होंगे। कैपिटल कितने तरह के होंगे, 2 तरह के होंगे। एक कैपिटल जो होगा वर्किंग कैपिटल, और सेकंड जो होगा वो फिक्स्ड कैपिटल। कैपिटल के 2 टाइप होंगे, वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या हुआ और फिक्स्ड कैपिटल क्या हुआ, जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया, बड़ा मशीन आपको खरीदना है, बिल्डिंग बनाना है, तो इन सारे के लिए जो आपको हैवी क्वांटिटी ऑफ मनी जो चाहिए, इसको हम फिक्स्ड कैपिटल कहेंगे। उसके बाद डे एक्टिविटीज के लिए, जैसे रॉ मटेरियल्स खरीदना है, ठीक है, लेबर को पेमेंट करना है, मशीन की मेंटेनेंस करना है, इन सारे के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए, रेंट के लिए, ये सारा क्या हो जाएगा आपका, ये आपका वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास 2 कैपिटल चाहिए। एक कैपिटल जो हम जिससे हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद हमारे हैंड वर्किंग करने के लिए हमारे हैंड में कुछ कैपिटल चाहिए जिससे हम कि डे टू डे का एक्टिविटी, डे टू डे का एक्सपेंसेस को हम मैनेज कर सके। सो थर्ड फैक्टर इज कैपिटल, एंड कैपिटल इज जस्ट डिवाइडेड इनटू वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल। एंड फोर्थ वन इज द मेथड ऑफ प्रोडक्शन। मेथड ऑफ प्रोडक्शन मीन्स आप कितने क्वांटिटी में आपको प्रोडक्शन करना है, क्या हैंड से करना है। अगर मान लो थोड़ी सी यूनिट में चाहिए, जैसे कि एग्जांपल लो कि आप अपने घर में घर के कुछ लोगों के लिए खाना बनाते हो, तो क्या है, आप अपने घर में अपने खुद ही बना लेते हो। लेकिन मान लो कि आपको कोई पार्टी फंक्शन करना है, 100-200 लोग आपके आएंगे, तो क्या होगा, उस कंडीशन में आप क्या करते हो, टेक्नोलॉजी को यूज करते हो, बड़ा चूल्हा
बाहर का कारीगर, वो डिफरेंट टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। तो कहने उसी तरह से अगर मान लो 2-4 यूनिट हमें प्रोड्यूस करना है तब तो ठीक है। छोटा सा जमीन का टुकड़ा है 1-2 कट्ठा, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कुदाल से भी काम प्लोइंग का काम कर सकते हैं। लेकिन आपके पास 25-50 एकड़ की एग्रीकल्चर एक्टिविटी करना है तो उस कंडीशन में क्या होगा, यू मस्ट हैव ट्रैक्टर्स एंड डिफरेंट एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स। तो चौथा जो फैक्टर्स होता है मेथड ऑफ ये प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, इसमें टेक्नोलॉजी में ही ह्यूमन टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स भी आ जाता है कि जैसे बड़े बिल्डिंग्स बनाने हैं, बहुत सारे बिल्डिंग्स बनाने हैं तो उस कंडीशन में आपको इंजीनियर चाहिए, ठीक है, तो ये ह्यूमन रिसोर्स के अंदर में आ जाएगा। तो कहने का मतलब दीज आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनीथिंग, आइदर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज और नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। जितने भी तरह की एक्टिविटीज है परफॉर्म जो प्रोडक्शन के लिए, उसमें ये 4 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसंट्रेट इन पालमपुर। इन वेलएवर अगर हम पालमपुर की बात करें तो पालमपुर के मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, मीन्स मेनली एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एक्टिविटीज आर जस्ट परफॉर्म देयर। नाउ अब एक देखिए कि लैंड क्या है, किसी भी जगह पे लैंड इज फिक्स्ड कैपिटल, लैंड इज फिक्स्ड मटेरियल। कहीं पे जमीन क्या बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। जितना जमीन आज से 50 साल पहले था, 500 साल पहले था, उतना ही जमीन था। केवल हम क्या कर सकते हैं, पहले अगर मान लीजिए आपके पापा के पास जितना लैंड था, आप 2 भाई हो तो क्या हो जाएगा, आपका जमीन का पोर्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। फिर आपके जो नेक्स्ट जनरेशन आएंगे वो और घट जाएगा। I mean, we are just seeing that there is not increasing or decreasing in land area, but what just happening, the population is just growing day by day. तो अगर पॉपुलेशन अगर इंक्रीज कर रहा है तो पॉपुलेशन के इंक्रीज करने का मतलब है क्या, इसका मतलब हमें रॉ मटेरियल, हमें रिसोर्स की ज़्यादा ज़रूरत होगी। लेकिन लैंड तो हमारा फिक्स है, उस फिक्स्ड लैंड से रिसोर्सेज का प्रोडक्शन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो रिसोर्सेज के प्रोडक्शन को हम बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो किस मेथड से, तो थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। हम एग्रीकल्चर के मेथडोलॉजी को चेंज करके हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। पहले ही उतना भी लैंड था और आज भी उतना ही लैंड है, लेकिन जितना प्रोडक्टिविटी आज हो रहा है शायद इतना प्रोडक्टिविटी पहले नहीं होता था। क्यों, क्योंकि उस समय एग्रीकल्चर को साइंटिफिक मेथड से हम नहीं करते थे। हम उतनी ही जमीन पे खेती करते थे जितनी हमें जरूरत होती थी, वो भी ट्रेडिशनल मेथड से, घर के बीज से, बारिश के पानी से, ठीक है। हम उसके लिए हमारे पास कोई इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं होता था। मानसून आया तो पानी मिल गया, नहीं मानसून आया तो पानी नहीं मिला, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो तो लैंड इज, अब नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेनेवर द रिसोर्स इज फिक्स्ड, बताए कि संपत्ति क्या है, फिक्स्ड है। अब है हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द फिक्स्ड प्लॉट ऑफ लैंड। आप एक फिक्स्ड लैंड है आपके पास, उसमें प्रोडक्शन को आप कैसे बढ़ा सकते हो, बताए। टेक्नोलॉजी को यूज करके हम जो है ट्रेडिशनल सीड्स के जगह पर HYV सीड्स यूज करें, हाई यील्ड वेराइटीज, ठीक है। हम कीड़े से बचाने के लिए इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स का यूज करें, ठीक है। इस तरह से हम फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स को यूज करके प्रोडक्शंस को हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। विल द लैंड सस्टेन इन द केस, अब कहता है, अब एक बात है टेक्नोलॉजी के यूज करने से क्या लैंड जो है हमारा उसको सर्वाइव करेगा। एक बात क्या, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या लैंड को हम बढ़ा घटा सकते हैं, नहीं, लैंड को हम बढ़ा या घटा नहीं सकते। लैंड हमारा इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करेगा, बस हमें क्या करना होगा, हमें मेथडोलॉजी को ही चेंज करना होगा, तभी हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस चैप्टर में डियर स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि हाउ लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिफरेंट फार्मर्स। आप अगर देखोगे तो रूरल एरियाज में क्या होता है, कुछ फार्मर्स ऐसे होते हैं जिनके पास तो बड़े जमीन के टुकड़े होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे फार्मर्स होते हैं जिनके पास इतना भी जमीन नहीं होता कि वो अपने रहने के लिए या इतना अन्न का, अनाज का वो प्रोडक्शन कर पाए जिससे कि अपनी रिक्वायरमेंट को वो क्या करें, फुलफिल कर सके। राइट डियर स्टूडेंट्स, हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब ये जो वर्क जो है करने के लिए एग्रीकल्चर में
डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए लेबर कहाँ से आते हैं, ये लेबर कौन होते हैं, तो अभी वही वो मतलब विलेज के वो पीपल्स जिनके पास लैंड जिनके पास नहीं है या लैंड जो है बहुत कम है, वो क्या है, वो लेबर के रूप में बड़े फार्मर के यहाँ या लैंडलॉर्ड्स के यहाँ क्या करते हैं, मतलब वेजेस पे उनके यहाँ वर्क करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर द कैपिटल विल कम। अब इन किसानों को, विलेज में रहने वाले जो फार्मर्स हैं, या बड़े फार्मर्स हो या स्मॉल फार्मर्स हो, ठीक है, तो इनके पास कैपिटल कहाँ से आएगा। ठीक है, इनके पास जो आप मनी चाहिए सीड्स खरीदने के लिए, इरिगेशन के लिए, ये सारे कहाँ से आएंगे। नेक्स्ट, सेल ऑफ सरप्लस फ्रॉम द प्रोडक्ट। अब देखिए कि जो अनाज खेती हुई और खेती के बाद अनाज का जो उत्पादन हुआ, प्रोडक्शन हुआ, वो अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के बाद जो एडिशनल उनके पास बचते हैं वो क्या करते हैं, तो उनको क्या करते हैं, आज शहर में जाकर के या दूसरे लोगों को जिनकी ज़रूरत उनको बेच देते हैं, या शहर के गोदाम में जाकर के क्या किया जाता है, उनको बेचा जाता है। ठीक है। गवर्नमेंट का भी क्या है, गवर्नमेंट का भी जो ऑर्गेनाइजेशन है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी क्या करती है, किसानों से अनाज खरीदने का काम करती है। अब ये तो हो गया एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। फार्मर्स के पास लैंड कैसे बटे हुए हैं, लेबर कहाँ से आता है, उत्पादन होने के बाद उस अनाज को क्या किया जाता है। ठीक है। अब इसके अलावा जो हम लोग देखेंगे कि एग्रीकल्चर के अलावा और कौन कौन से एक्टिविटीज हैं जो कि पालमपुर में परफॉर्म होते हैं। व्हाट आर द अदर एक्टिविटीज other than the agriculture just performed in Palampur village. So dear students, we will see furtherly in next video. Thank you. Have a nice day. Bye bye.